एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗਣਿਤ ਮੈਥਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਉਹਦਾ 7ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਐਲਜੈਬਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 7.3। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, जिवें इत्थे दस्सिया गया 7a 15m + 12 इत्थे एक्सप्रैशनस दिते गए ने इस डब्बे दे विच। हुण इत्थे दस्सिया गया कितनी टर्म्स हैगियां ने ते टर्म्स केड़ियां-केड़ियां ने। जिवें मैं एग्जांपल दवां, मैं लिखना 15 + 14, तुसी कहोगे मैम कितने नंबर ने, मैं कहांगी 2 नंबर ने। ठीक है, 2 ही नंबर ने। केड़े-केड़े ने? 15 ते 14। तुसी कितना आइडेंटिफाई किया? विच कुछ सिंबल सी, साइन सी, तो तुसी कहता एक 15 है ते एक 14 है। जे मैं लिखा 15 - 14 + 1, तुसी कहोगे मैम 3 नंबर ने जिन्हां नूं तुसी सॉल्व करना है ते केड़े-केड़े ने? 15, 14 ते 1। ओही चीज इत्थे लिखी गई है जिन्हां नूं आपां एल्जेब्रिक एक्सप्रैशनस कहंदे ने। इह एक टर्म है, केड़ी टर्म है? उहदे विच 7a। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਟਰਮ a ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ a ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟਰਮਸ ਨੇ ਪਲੱਸ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਟਰਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ a ਹੋ ਗਿਆ +4 ਹੈ, ਇੱਥੇ +4 ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ ਦਾ। +2b ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3c। 3c ਕਿਹਦਾ? ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਟਰਮ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ एक है x² ਉਹ प्लस ਦਾ, दूजी -4x ਤੇ ਤੀਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ प्लस ਦਾ 5, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲਾ 5 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਹੈਗੇ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂ 5 is added to x, x ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਐਡ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਲਿਖਤਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ a ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਘਟਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? 8 is subtracted from a। from ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ 8 ਘਟਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? a ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। 3a ਦਾ ਮਤਲਬ 3 multiplied by a, a is multiplied by 3। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ l/5, l is divided by 5। 2s + 3, पहला s ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? 2 ਦੇ ਨਾਲ। s is multiplied by 2, then 3 is added, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਐਂਡ ਨੰਬਰਸ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ 5 is added to x, ਫਿਰ ਸਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 5 ਐਡ ਕਰ ਦੋ x ਦੇ ਵਿੱਚ, x + 5 ਜਾਂ 5 + x। 8 is added to y, ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? y + 8। a is added to b, a + b। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ? 9 is added to m, 9 ਐਡ ਕਰ ਦੋ m ਦੇ ਵਿੱਚ, m + 9। 3 more than x, x ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ 3 more than x। 10 is added to p, p ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਐਡ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, subtract 3 from a, from ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ। ਜਦ from ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੋ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ। subtract 6 from x, x - 6। subtract x from 4, 4 - x। ਉਵੇਂ ਹੀ subtract 1 from y ਹੋ ਗਿਆ y - 1। डिक्रीज घटाना l/8। ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। डिक्रीज करना है l, l घटाना है किन्ने बार? किन्ना घटाना है? 8। डिक्रीज कर दो l ਨੂੰ, l ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦੋ by 8, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ 8। subtract a from 5, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 5 - a, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है किवें लिखना है। मल्टीप्लीकेशन किवें करांगे? मल्टीप्लाई a/3, ये हो गया a मल्टीप्लाइड बाय 3, 3a। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होए या प्रोडक्ट इको गल है। 5 एंड x का प्रोडक्ट 5x हो गया।
या कहा होए L टाइम्स 5, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, L मल्टीप्लाइड बाय M, L M आ गया, मल्टीप्लाई 5 बाय P, 5P, प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड Z, 4Z, ट्वाइस ऑफ L, 2L, ट्वाइस यानी 2 टाइम्स L, थ्राइस यानी 3 टाइम्स L। डिवीजन किवें करते हैं, B डिवाइडेड बाय 2, B बाय 2, जिमें एवें भी लिख सकते हैं, Y डिवाइडेड बाय 3, A आ गया, कोशेंट ऑफ L बाय M, कोशेंट ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ है, A बहुत इंपॉर्टेंट है, A मैं उम्मीद करती हूं तुसी लिख सकते हो, जे कोशेंट ऑफ A बाय B है यानी A डिवाइडेड बाय 2 लिखता है, कोशेंट ऑफ A बाय 2 पूछा गया सी ना, वो आपां लिखता। हुण अगे चलते हैं, स्टडी द फॉलोइंग एक्सप्रैशंस एंड टेल हाउ दे आर फॉर्म्ड, किवें बने किवें ने, ध्यान नाल देखियो, A माइनस 8 इनू लिख सकते हैं, सबट्रैक्ट करना है किनू, A दे विचों 8 नू, जिन्हों आपां लिख सकते हैं 8 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम A, 8 घटाए गए ने A दे विचों, L प्लस 1, 1 इज एडेड टू L, L दे विच एक ऐड किया गया, 2M, ट्वाइस ऑफ M या 2 टाइम्स M लिख सकते हो, A डिवाइडेड बाय 5, A किवें लिखांगे, 3 टाइम्स Z, फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ऐड किया गया, की लिख सकते हैं, फर्स्ट Z इज मल्टीप्लाइड बाय 3, देन 9 इज एडेड टू द प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करके जो आंसर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ऐड कर दो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी फर्स्ट 5 is multiplied by P, या P is multiplied by 5, then 8 is subtracted from the product, यानी जो multiply करके आंसर आया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 घटा दो। ਹੁਣ ਇਹਦੇ एक्सप्रेशंस देने ने, 12 is subtracted from X, X ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਘਟਾਤੇ, 8 is added to Y, 8 plus Y या Y plus 8 ਇੱਕੋ ਗੱਲ है, P is multiplied by minus 2, minus 2 multiplied by P, A हो गया minus 2P, A is multiplied by minus 5, A multiplied by minus 5 हो गया minus 5A, and 3 is added to result, आलो, L is multiplied by 2, 2L हो गया, and then divided by 7, A आ गया, जिन्हों आपां इदां करके भी लिख सकते। ਹੁਣ आम जिंदगी विच इन्हां नूं किवें यूज करीदा, जिवें इत्थे क्वेश्चन दिते गए ने, फाइंड द नंबर विच इज 12 मोर देन A विच 12 ऐड कर दो, इदां लिख दो, या 12 प्लस A, राइट द नंबर विच इज 8 लैस देन X, X दे विचों 8 घटा दो। हुण ये बड़ा इंपॉर्टेंट जिहा क्वेश्चन है, वासूस प्रेजेंट एज इज X ईयर्स, हुंदी जिहड़ी उम्र है वो X साल हैगी है। पहला सवाल है, व्हाट विल बी वासूस एज आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल बाद कितनी उम्र हो जाएगी, हुण जे X है 6 साल बाद X प्लस 6 हो जाएगी 19 साल, 3 साल पहला कितनी सी, हुंदी उम्र विचों 3 घटा दो, 19 साल। If Vasu's mother's age is 3 times his present age ਉਹਦੀ X है, mother ਦੀ ਉਮਰ 3 ਗੁਣਾ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਉਮਰ ਦੇ, mother ਦੀ ਹੋਗੀ 3X, what is the age of Vasu's mother, 3 ਗੁਣਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 3X ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੌਥਾ ਪਾਰਟ, if Vasu's elder brother Ankit, Vasu ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ Ankit is 10 years older than him, ਉਹਦੇ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਧਾ ਦੋ, अंकित की उम्र आ जाएगी। अगला, फाइंड हिज फादर्स एज इफ ही इज 7 years मोर देन ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज, ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज 2X, ओदे नालों भी 7 साल ज्यादा ने, ये आ गया 2X प्लस 7 या 7 प्लस 2X ईयर्स, पीछे ईयर्स लाने जरूरी। द लेंथ ऑफ अ रूम इज 5 मीटर लेस देन 3 times द ब्रेड्थ ऑफ द रूम, लेंथ कितनी है, द ब्रेड्थ इज B, चलो ब्रेड्थ B ले लो, 3 टाइम्स B, 3B हो गया, 5 मीटर्स लेस, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 मीटर घट हैगी है, ये हैगी है लेंथ, एंड इदां ही किहा ना, लेंथ कही है 5 मीटर घट हैगी है 3 टाइम्स ब्रेड्थ दा,
3 टाइम्स ब्रेड 3 भी होगी, माइनस कर दो 5, उन्ने मीटर दे विच आंसर करना, लिखना बहुत जरूरी है। हुण आपां ट्राई करते हैं एक्सरसाइज 7.3। पहला सवाल है पिक द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग। हुण तुहानूं पता चलेगा एल्जेब्रिक किहड़े ने। एल्जेब्रिक ओ वाले एक्सप्रेशंस हुंदे ने जिन्हां विच वेरीएबल हुंदा है, यानी ए बी सी डी कोई लैटर हुंदा है। अर्थमेटिक वो हुंदे ने जिवें ए, जिहदे विच ए बी सी डी वगैरह नहीं हुंदा। ठीक है, हुण एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिहड़े ने मैं टिक मार दिंदी हां, जिहड़े रह जाणगे वो अर्थमेटिक होणगे। जिवें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इत्थे एल हैगा, ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इत्थे कुछ नहीं है, ए अर्थमेटिक, ए एल्जेब्रिक, ए भी एल्जेब्रिक, एल हैगा, इत्थे एक्स हैगा, इत्थे की हैगा, कुछ भी नहीं है, ए अर्थमेटिक है, इत्थे ए हैगा एल्जेब्रिक, ए दोनों अर्थमेटिक हो जाएंगे। हुण फर्क पता लग गया। राइट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। चलो इनू ट्राई करते हैं। पहला हैगा 2y + 5z। टर्म्स केड़ियां केड़ियां ने, ध्यान नाल। एक तां प्लस दी 2y, दूजी प्लस दे विच ही 5z। ये प्लस माइनस लिखना बहुत जरूरी है। उवें ही सेकंड पार्ट जिहड़ा हैगा 6x - 3y + 8। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ टर्म्स किन्नियां ने 3। केड़ी केड़ी? एक ਤਾਂ 6x प्लस ਦਾ, दूजा माइनस ਦਾ 3y, तीजा प्लस ਦਾ 8, जिन्हों कल्ला 8 भी लिख सकते हो। थर्ड 7a, टर्म 7a कल्ली। चौथा 3l - 5m + 2n। टर्म्स केड़ियां केड़ियां ने 3, 3l, दूजी -5m, तीजी +2n। हुण जिहड़ा पंजवां पार्ट है वो तुसी मैनू कॉमेंट सैक्शन दे विच दस्सियो कि केड़ी केड़ी टर्म्स हैगियां ने इहदे विच। हुण आपां अगे चलदे हां। टेल हाउ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर फॉर्मड। ये किवें बने ने? बहुत सौखा है दसना। a + 11, इनू आपां लिख सकते हैं a is increased by 11। a दे विच 11 ऐड कीते, a नू 11 वधा, 11 ऐड करके वधाता। दूजा 12 - x, x घटाया गया है ना, तो आपां लिखांगे 12 विचों x is subtracted from 12। तीजा 3z + 8। पहला 3 times z is increased by 8, या तुसी लिख सकते हो z is multiplied by 3 and then 8 is added to the प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करके जो आंसर है उसदे विच 8 ऐड करता। उवें ही चौथा पार्ट 6 - 5l। 5 is multiplied by l, a करता, and then the product जो भी आंसर आया is subtracted from 6, ते फिर उन्होंने 6 दे विचों माइनस कर दिता। यही कीता है। उवें ही पंजवां पार्ट 5a/4, इदां भी लिख सकते हो 5 times a is divided by 4, या लिख सकते हो a is multiplied by 5 and प्रोडक्ट जो भी आंसर आया is divided by 4। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक्सप्रेशंस दसने ने। 10 is added to p, p दे विच 10 ऐड कर दो। 5 is subtracted from y, y दे विचों 5 घटा दो।
D is divided by 3, ਜਿਹੜਾ D ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ 3 ਦੇ ਨਾਲ, D ਉੱਤੇ 3 ਥੱਲੇ। L is multiplied by -6, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ -6 multiplied by L, -6L. M is subtracted from 1, 1 minus M आएगा। 6वां 11 is added to 3x, ये हो गया 3x ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ऐड करते। 7th y is multiplied by -2, पहला y multiplied by -2 किया, -2y हो गया, and then 2 is added to the result, -2y ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ऐड कर दो। c is divided by 5, ये हो गया c by 5, and then 7 is multiplied to the result, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 multiply करूंगे, ये हो गया 7 multiplied by c by 5, ये हो गया उत्ते वाले नू उत्ते वाल multiply कर दो, 7c by 5 आंसर। अगला x is multiplied by 3, 3 multiplied by x, 3x हो गया, then subtracted this result from y, ये ਜਿਹੜਾ आंसर आया है इनू y ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਣਾ है, y minus 3x आ जाएगा। ये ध्यान नाल 3x minus y नहीं, y ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਣਾ है from y। a is added to b, a हो गया जब a add किया b ਦੇ ਵਿੱਚ, then c is multiplied ਤੇ c ਦੇ ਨਾਲ multiply करता ਜਿਹੜਾ result आया, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ हो a plus b ਨਾਲ ही c। अगला क्वेश्चन, राइट द नंबर विच इज 15 लेस देन y, वैसे तो ਇਹਦਾ ਇਹ बनेगा, लिखना किवें ਇਹਨੂੰ, द नंबर विच इज, पूरा लिखना है 15 लेस देन y is equal to y minus 15, राइट द नंबर विच इज 3 more than a, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ऐड करना है, लिखना किवें, द नंबर which is 3 more than a, वो हो गया a plus 3। 7वां, find the number which is 1 more than twice of x, twice of x हो गया 2x, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ऐड करना है, पूरा लिखना है। जे ये प्रैक्टिस तुसी कर ली ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਘਟਣਗੇ। ਦ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਇਜ਼, ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖ ਦੋ, 1 more than twice of x, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ twice of x 2x, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਐਡ ਕਰ ਦੋ। 8th, find the number which is 7 less than 5 times y, 5 times y 5y, 7 less than, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਘਟਾਣੇ, the number which is 7 less than 5 times y is equal to 5y minus 7। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सोमीज प्रेजेंट एज इज ए ईयर्स, हुण दी उम्र सोमी दी ए साल हैगी है। हुण ए अलजेब्रिक एक्सप्रैशन दे विच लिखना है जो सवाल अगे पूछे गए ने। हर एज आफ्टर 15 ईयर्स, ओ ए प्लस 15 ईयर्स हो जाएगी, इनू लिखांगे। पहला लिखना है सोमीज प्रेजेंट एज, हुण दी उम्र कितनी है ए ईयर्स। हर एज आफ्टर 15 ईयर्स वो कितनी हो जाएगी ए प्लस 15 ईयर्स, लिखना बहुत जरूरी है। दूजा पार्ट, हर एज 2 ईयर्स एगो, हुंदी एज विचों 2 घटा दो। हर एज 2 ईयर्स एगो वो कितनी आ गई ए माइनस 2 ईयर्स दे विच। तीजा पार्ट, if Somi's father's age is 5 more than twice her present age, twice her present age कितना हो गया 2x प्लस 5, 5 मोर हैगी, कितनी है फादर दी उम्र, इत्थे लिखांगे Somi's father's age is equal to 2a plus 5 years हो जाएगी।
चौथा पार्ट, सोमी's sister is 4 years younger to her, 4 साल ਉਹਦੇ ਤੋਂ younger है, younger ਦਾ मतलब छोटी है, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਚੋਂ 4 ਘਟਾ ਦੋ। सोमी's sister's age a minus 4 years ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਵਾਂ, if Somi's mother is 3 less than thrice या 3 times her present age, 3 times present age 3a, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਘਟਾ ਦੋ। 3 less than है ना, Somi's mother age वो कितनी है, 3a minus 3 years। अगला क्वेश्चन, if the length of the floor is 10 more than twice of breadth, what is the length if breadth is L meter, breadth हैगी है L, twice या 2 times of breadth होगी 2L, ते length कही गई है 10 more हैगी है, 2L plus 10 हो गया। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ the breadth of floor, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, L ਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਗੀ 2L plus 10 ਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। जेकर थानू एक्सरसाइज समझ आ गई, वीडियो वधिया लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करियो। ते हुण आपां अगली क्लास विच मिलांगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।